तो यहाँ पे हमने क्या लिया, लेट्स टेक अ जावा प्रोजेक्ट हियर, एप्लीकेशन 10 array 1D इन जावा। तो सबसे पहले एरे क्या होता है ये अभी सबको मालूम होगा इस बैच के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि एरे मतलब क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में तुमने देखा होगा या सी प्लस प्लस में देखा होगा। एरे इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो डेफिनेशन वाइज सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द मेमोरी एलोकेशन। देयर इज अ डिफरेंस इन द मेमोरी एलोकेशन। डेफिनेशन अगर देखोगे तो सेम होगा। एरे वन, ये देखो, डेफिनेशन वाइज अगर देखोगे तो concept is same, but C programming में you normally you allocate the array using the syntax. But in case of the Java, if you want to allocate the array, so then you have to create ARR equal to null. ARR is equal to new integer of 5. So you have to create the array using this line. You have to create the array. This is called as array declaration. Array declaration. ओके और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेमोरी अलोकेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज एरे डिक्लेरेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज मेमोरी अलोकेशन। ओके, डिक्लेरेशन में मतलब क्या होता है, तुमने सिर्फ डिक्लेयर किया, तुमने बोला कि ये एक एरे वेरिएबल है, कौन, ARR। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यू हैव अलोकेटेड मेमोरी, मतलब दिस लाइन इज इक्विवेलेंट विद दिस लाइन ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग। ये वाला जो लाइन है तुम्हारे सी प्रोग्रामिंग के इस लाइन के साथ इक्विवेलेंट है। सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। तो न्यू क्या करता है वो हम लोग देखेंगे बाद में, डोंट वरी, बट allocate the memory at the run time for 5 integers. Okay, so this line of your C programming you can compare with this line in Java. This line of your C programming you can compare here in a Java. Okay, तो इसके बाद क्या करेंगे, तो after this if you want to insert the element, take a scanner class, take this scanner class here. So देखो, I am not going to tell you the typical array concept. We are going to learn some different concepts here. But before that, you should know the syntax in Java. Is equal to new scanner system.in. System.in यहाँ पे हम लिखेंगे enter elements in array. Enter the elements in a array. Enter the elements in array. You can use the for loop. I equal to 0, I less than ARR dot length I plus plus. देखो I equal to 0 है, 0 less than 5 से, तो सबसे पहले ARR of I equal to SC dot next in, तो मतलब पहला वैल्यू यहाँ पे चला गया, that is a 10. So इसका मतलब क्या होता है, when you are allocating a memory, let's understand this. ये तुम्हारा array है, okay, this is the first memory, second memory, ये आएगा third memory, ये आएगा fourth memory, मतलब fifth index. यहाँ पे हम लिखेंगे 0 index, क्या आएगा 1 index, ये होगा 2 index, एंड तो यहाँ पे आएगा 3 इंडेक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ओके, जस्ट सर्च करके रखना, आज देखते हैं कौन आंसर देता है कि एरे का इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, नोट डाउन दिस। हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था सी के बैच में, बट लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। सो एवरीबडी, वन स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू, you have to search why array index starts from 0. Okay, so why array index starts from the 0? This is a question for you. Okay, remember this. Most of the time this is one of the interview question. This is one of the interview question. Okay, तो ये मेरा array है, इसका नाम क्या बोला मैंने, ARR. This is called as the ARR. अभी क्या करेंगे, तो I 0, 0 less than 5, I यहाँ पे होगा 0 less than 5 से, तो पहला नंबर हम रीड करेंगे, उसको 0 पे रख देंगे, तो फर्स्ट नंबर इज हियर राइट नाउ. उसके बाद I becomes 1, 1 less than 5,
I is a 20. नेक्स्ट नंबर आएगा 1 पे आएगा. I is here right now. Number is here 20. उसके बाद I becomes 2. 2 less than 5. Next number is 30. तो next number आएगा यहाँ पे. I is 2. Number is a 30 here. Okay. I is 3. 3 less than 5. Next number आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये I आ गया 3 पे. तो number यहाँ पे आ गया. फिर I is here. Number is here. So in this way you can store the element in the array. This is very basic syntax. So this is the way you can store the element in the array. So everybody, this is clear? Please reply. यहाँ तक clear है? Okay. Now to print this, elements in array are, take one more for loop. I equals 0. I less than, you can type here arr.length I plus plus. That's why so arr of I ऐसे. I 0 है, 0 less than है 5 से, तो पहला 0 वाला एलिमेंट प्रिंट करो, that is a 10. मतलब पहले 10 प्रिंट होगा. I becomes 1, 1 less than होगा 5 से, तो फिर 1 वाला एलिमेंट प्रिंट करो, that is a 20. ये प्रिंट होगा. I becomes 2. तो 2 less than 10, तो प्रिंट करो नेक्स्ट एलिमेंट, that is a 30. I becomes 3, 2 भी हो गया. I becomes 3, print this. I becomes 4, print this. So in this way you can print the element from the array. So this is syntax to print the element from the array. Okay. This is the syntax to print the element from the array. Enter elements in array. 5, 6, 8, 9, 9. 5, 6, 8, 9, 9. Okay. तो अभी क्या करना है? So here you are accepting the element, here you are displaying the element. So, but this is not the way like we have to write the code. So we are going to write your program in the different fashion. So like I'll create a 2 classes here. But before we modify the program, any questions here? Please tell me. Any questions here? Please tell me. Any doubt? Any questions? Tell me. इथपर्यंत कळले का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. एलिमेंट ऍक्सेप्ट कसे करायचे, एलिमेंट डिस्प्ले कसे करणार? Okay. So to write the code in a proper way, like in the object-oriented format, let's create a 2 classes. Create a 2 classes here. So the first class is array operation. Array operation. ठीक है? तो ये होगा array operation का class. I will take the 2 methods here. Public void create a array. Public void insert elements and public void display elements. So देखो, first function is to create the array, means allocate the memory for the array. Allocate the memory for array. Okay, second function is insert the values in array, and third one is display the element from the array. ठीक है, तो ये फंक्शन का काम क्या है? मेमोरी एलोकेट करना. इसका काम क्या है? एलिमेंट को इंसर्ट करना. इसका काम क्या है? डिस्प्ले करना. So then what you can do now, ये वाला जो कोड है इसको यहां से हम कॉपी करेंगे, और I can like you can cut the code, no problem. Cut this code from here. मेमोरी एलोकेट करना है ना, तो एक काम करो, इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो. तो इसका काम है मेमोरी एलोकेट करना. मेमोरी एलोकेट करने के बाद रिटर्न
ARR, तो एरे रिटर्न कर रहे हो तुम लोग, कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे लिखो इंटीजर का एरे, ठीक है। देन go to the main function again, go to main function again. So I want that array here, integer ARR is equal to, उस क्लास का नाम क्या है, array operation. What is the name of that class? Array operation. AO, ठीक है, is equal to new array operation and then O dot create array. तो यहाँ पे array allocate हो गया. सबसे पहले array का तुमने क्या किया, memory allocate किया. Okay, here I got a memory for the array. Now after this insert the element, AO dot insert element. इसके लिए किस में insert element करना है, ARR में. कितने element insert करना है ये भी बताना पड़ेगा. एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ लेंथ प्रॉपर्टी. गो टू द इंसर्ट एलिमेंट ARR, यहाँ पे आ जाओ. इंसर्ट करने का जो कोड था, यू कैन जस्ट कट दिस कोड फ्रॉम हियर एंड पेस्ट हियर. ये होगा इंसर्ट का काम. यहाँ पे रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर एंड जस्ट पेस्ट हियर इनसाइड दिस क्लास, ठीक है. अभी एंड देन लास्ट इज डिस्प्ले का कोड है, इसको कट करो. AO डॉट डिस्प्ले एलिमेंट्स, इसको भी एरे पास कर दो. वही एरे, ये वाला जो एरे है ना, ये पास करो. ये एरे यहाँ पे आएगा, इंटीजर ARR एंड देन राइट डाउन योर कोड हियर. तो क्या किया मैंने, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रीवियस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम? प्लीज रिप्लाई. What is the difference between the first program and this program? Please tell me. Here the different class created. So that's right, we have created a different class. Okay, so the advantage is that tomorrow I can add the other operations here, like sorting, searching, insertion, deletion. तो ये सारे ऑपरेशन इस क्लास में होंगे, ठीक है. और ये उसको सिर्फ मैनेज करेगा यहाँ से. तो एक बार चेक करते हैं कि वर्क हो रहा है क्या सही से. लेट मी चेक द प्रोग्राम. यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे 10, 20, 30, 40, 50. ये आ गया. एलिमेंट्स इन एरे आर दिस. करेक्ट है. सेपरेट क्लासेस फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस एंड मेन सो इट्स इजी टू हैंडल. करेक्ट है. दैट्स राइट. ठीक है. So what we did now, listen. We have here create array function, जो कि क्या कर रहा है, मेमोरी अलोकेट करके तुम्हें यहाँ पे मेमोरी रिटर्न कर रहा है. तो यहाँ पे एक डिफरेंस है. इफ यू ऑल आर फ्रॉम द सी बैकग्राउंड, तो तुम लोगों को याद होगा कि सी में हम लोगों ने दो कंसेप्ट सीखे थे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. डू यू नो दैट कंसेप्ट इन अ सी प्रोग्रामिंग? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि ओरिजिनल में अगर चेंज किया तो ओरिजिनल में, सॉरी, जो टेम्पररी में चेंज किया तो ओरिजिनल में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, राइट. देयर इज नो चेंज इन द विच फॉर्मल पैरामीटर. रिमेंबर दिस. इफ यू चेंज द टेम्पररी वेरिएबल, इट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल. तो ये दो टाइप के वेरिएबल थे. ये थे टेम्पररी वेरिएबल और यहाँ पे थे मेरे ओरिजिनल वेरिएबल. तो ओरिजिनल क्या करता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 एंड 20, तो ये 10 इसको दे दिया मैंने और 20 इसको दे दिया. तो यहाँ पे इसने 10 को चेंज करेगा बाद में. जैसे एग्जांपल लो, इसने 10 को बना दिया 100 और इसको कर दिया 200, बट इसको चेंज नहीं होगा. ये था कॉल बाय वैल्यू. इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू. इफ यू रिमेम्बर दिस फ्रॉम द सी. ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू. If you change this variable, जो कि temporary variable है, if you change the temporary variable, मतलब कौन ये, this does not affect the original variable. ठीक है. तो जावा में होता क्या है, प्लीज लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बाद में बताऊंगा बट फिर भी याद रखो. अगर जावा के अंदर तुम इंटीजर n इक्वल टू 10 लिखोगे और इंटीजर y इज इक्वल टू n करोगे, तो टेल मी हाउ मेनी मेमोरीज आर अलोकेटेड ओवर हियर. टेल मी यहाँ पे कितने मेमोरी अलोकेट हो गए. टेल मी. दिस इज इन जावा आई एम आस्किंग. जावा में इफ यू हैव n इक्वल टू 10, y इक्वल टू n, तो कितना मेमोरी अलोकेट होगा बताओ.
Okay, so no, here you will get two separate memory. One is for the n, one is for the y. No, 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 you will get two memories. ये आएगा n का memory. This is for the memory. ये हो गया n का memory और यहाँ पे आएगा ये होगा y का memory. ठीक है? This one is for the n memory और ये आएगा y memory. याद रखो. ठीक है? अभी क्या करना है? तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर अगर हमने ऐसे लिखा है फिलहाल, please listen, this is very important concept I'm telling you. A is equal to new integer of 5. अगर मैंने integer b जो कि array है उसको अगर a दे दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये a और b both will point to the same memory. ये था तुम्हारा a और b भी उसको ही point करेगा. याद रखो. This is very important concept. Please listen. a इधर point कर रहा है तो तुम्हारा b भी उसी को point करेगा. तो because in Java whenever you allocate a memory using new keyword, जिसका मेमोरी तुम न्यू से अलोकेट करते हो उसको अगर तुमने किसी और को दे दिया, लाइक यहाँ पे इसको दे दिया, तो दिस इज लाइक अ कॉल बाय रेफरेंस. दिस इज लाइक अ कॉल बाय रेफरेंस एंड दिस इज अ कॉल बाय वैल्यू. तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप और इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टाइप. प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस. ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसको हम बोलेंगे प्रीमिटिव डेटा टाइप. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीमिटिव टाइप एंड दिस इज रेफरेंस टाइप. रेफरेंस टाइप मतलब क्या? अगर तुमने ए जो जिसका मेमोरी न्यू से अलोकेट किया उसको किसी और को दे दिया उस टाइप के वेरिएबल को, तो बोथ द वेरिएबल विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी. हियर द बोथ द वेरिएबल विल पॉइंट टू द सेपरेट मेमोरी. प्रिमिटिव टाइप हैज अ सेपरेट मेमोरी बट रेफरेंस टाइप हैज द सेम मेमोरी. प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड दिस. ओके, तो क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू में देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. There are many questions. What is the reference type? What is the value type? What is the reference type? What is the value type? Always remember. Yes, always remember. Java में there is no pointer. In Java there is no pointer, but we are getting the feature like a pointer using this new keyword. अगर memory new से allocate होता है, उस variable को तुम किसी और variable को देते हो, तो ये variable और a both will point to the same memory. A and B both will point to the same memory. अभी वही हो रहा है. In the current example, please try to understand this. I have created the array with the help of this method. इसने मुझे array create करके दिया. इसने point address नहीं return किया. I am returning only ARR. ये array return हो गया यहाँ पे. Your array is returned to this place. यहाँ से हम वापस आ गए ARR के पास. ये जो ARR है, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका नाम बदल देता हूं मैं. इसको लिखता हूं मैं सपोज BRR. चलो, इसका नाम क्या है? BRR. सो दिस BRR एंड ARR बोथ विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी. इसने जो मेमोरी अलोकेट किया है ARR ने, वही मेमोरी अभी हम लोग किसको देंगे? इस BRR को देंगे. अभी ये BRR यहाँ पे पास कर दिया तो ये जाएगा यहाँ पे. इधर भी ARR, इसको लिखता हूं मैं CARR. तो ये भी उसी मेमोरी को पॉइंट करेगा. तो इसने उस मेमोरी में एलिमेंट इंसर्ट कर दिए. हियर आई हैव इंसर्टेड द एलिमेंट इन द सेम मेमोरी. तो बाद में क्या होगा? अगर इसने इंसर्ट किया तो ऑब्वियसली इसको भी मिलने वाला है. किसको? इस BRR को मिलेगा. इसने BRR इधर पास कर दिया. यू कैन गो दिस BRR, पास दिस BRR हियर. सपोज ये इसका नाम है BARR, तो ये B भी उसी को पॉइंट करेगा. तो अल्टीमेटली हियर all these variables will refer to the same memory. All these variables will refer to the same memory. Now let's understand in a diagram. सबसे पहले मेन में आ जाओ. मेन क्लास में मेन ने क्या किया? क्रिएट को कॉल किया. गो टू क्रिएट. क्रिएट ने ARR नाम का मेमोरी एलोकेट किया. तो ये आ गया ARR. देखो ये है मेरा ARR. याद रखो. हाँ प्लीज, ऑलरेडी लिखा है मैंने, याद रखो ये. ओके, ARR रिटर्न कर दिया. किसको? यहाँ पे उसका नाम BRR है. ओके, तो फिलहाल इसका नाम हो गया, इसका नेम हो गया BRR. ओके, अभी ये BRR इधर गया, एलिमेंट इंसर्ट कर दिए. इधर नाम CARR है. नो प्रॉब्लम, इसी का नाम CARR होगा. यही है CRR सपोज. ठीक है, इधर एलिमेंट इंसर्ट कर दिए. देन यू कैन लाइक गो टू योर मेन अगेन. डिस्प्ले को कॉल करो, BRR पास करो. So you have inserted the element in a CRR and you are displaying a DARR. Ultimately your DARR, CRR, BARR, AARR
or all are the same memory. Okay, every variable has the same memory. That's why this function is allocating memory, this function is inserting a data, this function is a displaying a data. Understood? Please reply everyone. सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो? Please reply. If any doubt, please tell me. So can I change the name? Should I keep the same name? So to avoid the confusion. So I will keep the same name to avoid the confusion. Okay, keep the name ARR only. Everywhere you can keep the name ARR only. So that's better actually. हाँ, तो इसको मतलब ऐसे मत समझो, बट अगर ये तुम सी प्रोग्रामिंग में करते ना, सपोज अगर तुम इसको सी में करते, एग्जांपल लो, आई हैव अ फंक्शन वॉइड मेन. ओके, अगर इसने क्या बोला कि मेरे पास n है जो कि 10 है, ये डिस्प्ले कर दिया मैंने n इधर, तो यहाँ पे क्या होता, वॉइड डिस्प्ले के अंदर तुम्हारे पास x अगर होता ना, तो टेल मी हियर n and x both are same or different? Here n and x both are same or different? Tell me, memory wise. Memory wise, tell me, memory wise, same or different? डिफरेंट रहेगा, नॉट अ सेम. प्लीज अंडरस्टैंड, इसी को कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं. वही मैंने तुम्हें बोला, अगर सी में सेम मेमोरी चाहिए तो यू नीड टू पास द एड्रेस हियर, और ये तुम पॉइंटर लेते हो एंड तब ये बनता है कॉल बाय रेफरेंस. क्लियर? बट जावा में जिसका मेमोरी तुम लोग अगर न्यू से एलोकेट कर रहे हो, एग्जांपल इन जावा void main, suppose if I allocate the memory, if you are preparing for the interview, तो memory management को बहुत अच्छे से prepare करो, because you don't say that कि we know Java, we know database, but more important than than instead of the language, the architecture, memory management is very important here. Okay, so when you are allocating memory, take an example, ARR is equal to new integer of ARR. तो ये अगर किसी को पास करोगे तुम लोग जावा में, तो ये एक ही मेमोरी को पॉइंट करेगा, void display. ये बहुत काम का कंसेप्ट है, तो तुम्हें ये पहले ही समझ में आना चाहिए था जब मैंने तुम्हें लास्ट वीक में सेटर गेटर वाला प्रोग्राम बताया था. क्यों बताता हूँ मैं, व्हाट इज द रीजन. ARR का 0 में यू कैन ऐड सम वैल्यू 10, ARR के 1 में यू कैन ऐड द वैल्यू 20. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे यू हैव एलोकेटेड सम मेमोरी, पास दैट मेमोरी टू दिस ARR, तो इसने ऐड किया तो इसको ही मिलने वाला है बाय डिफॉल्ट. इसको प्रिंट भी करोगे ना तुम लोग फॉर लूप के साथ, I equal to 0, I less than होगा ARR dot length and I plus plus, फिर भी तुम्हें तुम्हारा डेटा यहाँ पे मिलेगा. तुम बोलोगे सर आपने तो प्रिंट नहीं किया डेटा को, फिर भी कैसे प्रिंट हो रहा है? तो आपने तो रिटर्न नहीं किया यहाँ पे. सी, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न द डेटा हियर. सी, नो नीड टू रिटर्न द डेटा हियर, फिर भी यहाँ पे डेटा मिलेगा, बिकॉज ये ARR और ये ARR दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू कीवर्ड. Because of the new keyword. So if you remember in the last week we created a program here. account का क्लास था हमारे पास, उसके बाद क्लास था हमारे पास मेन ने क्या किया था, अकाउंट A इक्वल टू न्यू अकाउंट ओके, और A डॉट सेट अकाउंट नंबर इक्वल टू 10, A dot set customer name is equal to रमेश. ठीक है, ऐसे. तो और बाद में तुमने इसको पास कर दिया था डिस्प्ले को, सपोज ये डिस्प्ले को पास कर दिया. सपोज योर क्लास वाज अकाउंट इनको, तो यहाँ पे देयर इज अ फंक्शन डिस्प्ले अकाउंट. तो अभी SOP के अंदर A डॉट गेट अकाउंट नंबर, तो बाकी भी लिख लो. तो यहाँ पे मेन ने डेटा को सेट किया, इस A को यहाँ पे पास कर दिया, मतलब ये जो A है ये ओरिजिनल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये प्रिंट करवा रहा है. अंडरस्टूड? यू आर गेटिंग द आंसर ओवर हियर लाइक 10. हियर यू आर गेटिंग द आंसर. अगर किसी ने बोला कि सर मुझे चेंज करना है, A डॉट सेट अकाउंट नंबर चेंज करना है यहाँ पे, जैसे कि देखो मैंने बोला कि 20 कर दो और यहाँ पे जाके प्रिंट करो. चलो SOP
new account number is plus a dot get account number. Now here your display function has changed the data, but still you will get the changes in a main function also. See, यहाँ पे अगर चेंजेस करोगे फिर भी मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो चेंजेस, क्योंकि इसका मेमोरी न्यू से अलग हुआ। इस ऑब्जेक्ट को अगर तुमने किसी और मेथड को पास कर दिया, उसने अगर चेंज कर दिया तो ओरिजिनल में चेंज होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। So this concept is called as the reference variable, or you can say this is a reference variable and this is called as the primitive type। मतलब कौन सा वाला? ये होता है primitive type, n equal to 10 और y is equal to n। ये हुआ primitive। primitive में there are two different memories, but reference में there is only one memory and this is like a nickname, you can say that। तो मुझे वही बताना था कंसेप्ट कि जावा के अंदर मैंने एरे को क्रिएट किया, यहाँ पे इसने सिर्फ एरे रिटर्न कर दिया। अगर तुम्हारे पास और एक ऑप्शन था, मालूम है क्या? रुको बताता हूं मैं। लेट मी जस्ट इंप्लीमेंट हियर। देखो, इंटीजर ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ, मैं एक मैक्स साइज का ले रहा हूँ, 20 साइज का मैंने एरे ले लिया है, 20। ठीक है, यहाँ पे हमने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट इन एरे, how many elements do you want in array, n equal to sc dot text in। so you need a scanner class here, system dot in, how many elements do you want in array। so I said I want, suppose element n is equal to 10। okay, तो हमने यहाँ पे n को पास कर दिया क्रिएट के साथ, go to create, यहाँ पे आ गया n, यहाँ पे क्या आ गया? n आ गया। लिसन ना, one second, okay, हाँ, I have allocated memory for 20 elements, I have allocated a memory for how many elements? 20 elements। ठीक है, तो ओके लिसन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 20 का एक मेमोरी एलोकेट कर दिया। देन हाउ मेनी एलिमेंट डू यू वांट? आई सेड आई वांट 5 एलिमेंट, बट कौन से मेमोरी में? ARR में। ठीक है, गो टू, बट वेयर इज ARR? दिस ARR इज 20 साइज, रिमेंबर, गो टू दिस प्लेस, जस्ट एक्सेप्ट योर ARR here and n here, then no need to declare the ARR now। तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, इसकी भी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस। अच्छा, तो फिर इसको ब्लैंक रखो ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ब्लैंक रखेंगे। सुनो, वन सेकेंड, एक काम करा, राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, one thing, for some time I will remove this method। okay, how many numbers do you want? I said I want 5 numbers, so you pass your array and n to the create, create is not there, so directly you can pass this to the this method। ओके हाँ, सुनो, तो ये क्रिएट तो हो गया यहाँ पे, एक सेकंड ना, तो ये आएगा 20 का मेमोरी, सपोज दिस इज a 20 मेमोरी, then how many element do you want in array? n, so then pass this array and comma integer n, तो इसका लेंथ मत लिखो, यहाँ पे n लिखो अभी। I want 5 elements, see I am not going to return the data, हाँ, remember this। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए you can use your array and comma n,
comma n here. Go to display, यहाँ पे लिखो comma n. So let's compile the code. How many elements do you want? I want here 5 elements, 10, 20, 30, 40, 50. ये देखो, ये बाकी वाला जो डेटा है 0 आ रहा है because your array size is 20. Your array size is a 20. सुनो, array size क्या है? यहाँ पे 20 का है. तुमने बोला कि I want 5 elements. डिस्प्ले को बोला कि 5 को डिस्प्ले करे, बट यहाँ पे लेंथ लिखा है ना, तो ये 20 तक जा रहा है. So you can just keep this value till n. हाँ. So compile once again. How many elements do you want? I said I want 5 elements. 10, 20, 30, 40, 50. Elements are 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Okay. So this is the way you can allocate the memory here. You can insert the element. You can display the element. सर्वांना कळलं का मी काय केलं ते? Please reply. If any question, ask me. If you have any question, do you have any question here? Please tell me. See, only one request I want to tell you. I will repeat. Don't worry about that. But ask me the specific question, because what happened, I'll tell you. Sometimes, some people. Okay, some people, if they. Okay. So if you miss because of some reason, so then you can't able to understand the rest of the part. Yeah, let's listen. ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने? लिसन केयरफुली. एज आई टोल्ड यू, वी हैव 2 क्लासेस हियर. पहला क्लास कौन है? तुम्हारे पास यहाँ पे एरे ऑपरेशन है, जिसका काम क्या है कि हम लोगों ने पहले मेन क्लास में बोला कि आई वांट हाउ मेनी एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स. यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल एरे एलोकेट कर दिया. फॉर व्हाट साइज? 20 साइज. हाँ, याद रखो. ओके, सो यू हैव एरे राइट नाउ विथ साइज व्हाट? 20. तो ये जो कंटिन्यू करोगे तो समझिए 90 इंडेक्स तक होगा. कहाँ तक होगा ये? 90 इंडेक्स तक होगा. तो यहाँ पे मैंने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट? आई सेड आई वांट 5 एलिमेंट्स. पास दिस एरे एंड n. तो यहाँ पे आएगा एरे एंड n. ओके, मतलब जो तुमने मेमोरी एलोकेट किया वो, और यहाँ पे आएगा 5. तो आई वांट ओनली 5 एलिमेंट. सो आई 0 0 लेस देन 5. तो पहला एलिमेंट लो, 0 में इंसर्ट कर दो, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे. यू कैन इंसर्ट योर एलिमेंट हियर. तो एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद गो टू मेन क्लास वंस अगेन. सो मेन क्लास में डिस्प्ले को कॉल करो. इसको बोलो कि इस एरे में से 5 नंबर को डिस्प्ले करो. तो ये हो गया एरे और ये हो गया 5. तो यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले कर दिया. 0 1 2 3 4. दैट्स इट. 0 1 2 3. ओके, 30 40 50. ठीक है, तो 10 20 30 40 50 इसको डिस्प्ले करो. दॅट्स इट. बाकी काय केलं नाही आपण, फक्त काय केलं, इथे एक ग्लोबल मेमरी अलोकेट केली. राइट नाउ लुक एट दिस. I allocated a memory for 20 elements. Then call the create insert function. The job of the insert is to insert the element, and job of the display to display element. Hello everyone, understood this? Please reply. So यहाँ पे we can create a menu right now. See, here I will create a menu. Insert the value in array. Insert dash n to display 3. Search for delete 5. Sort. ठीक है, तो देखो, 1 for insert, display, search, delete and sort. और भी है, पहले इतना तो हम लोग करेंगे. Enter your choice. XYSO. Enter your choice here. ch equal to sc dot. Next int. Switch ch here.
case 1, break here and call this function. How many zeros do you want? Call this function, insert, case 2, break here and call this here. Okay, तो ये कॉल करेगा क्रिएट को, ये कॉल करेगा डिस्प्ले को. यहाँ पे हम पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1, sc dot next in. Again I'm telling you, okay, जिन लोगों का पहला लेक्चर मिस हुआ है तो I will take the basic lecture, don't worry. Okay, so here add the do and here is the while, ch equal to 1 and thank you. Okay, तो देखो ये जो n है इसको ग्लोबल डिक्लेयर करो, एरर को पढ़ो. ओके, इफ एनी एरर इज देयर रीड दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एरे क्रिएट कर दिया, 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 फॉर सर्च एंड कंटिन्यू दिस. एंटर योर चॉइस. अगर चॉइस 1 होगा तो हम लोग इंसर्ट को कॉल करेंगे जो कि इंसर्ट कर देगा एलिमेंट्स को, वापस आ जाएंगे. यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक यहाँ पे लेके आएगा. डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस. फिर से डू के पास आ जाओ, तो यहाँ पे अगर 2 प्रेस कर दिया तो कम टू दिस ब्लॉक, डिस्प्ले को कॉल करो, डिस्प्ले इन सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा. वंस अगेन कम टू द मेन, ब्रेक करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, बाहर आ जाओ यहाँ पे. ठीक है, तो सी दिस इज द वे यू हैव टू क्रिएट अ मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन. एरर क्यों है? इनिशियलाइज द वेरिएबल. ओके, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दो. जावा के अंदर एक रूल याद रखो, कोई भी वेरिएबल लिखोगे तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू दो. क्योंकि अगर किसी ने विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू बाई चांस डिस्प्ले कर दिया उसको, तो जावा क्या बोलता है कि आई डोंट हैव अ गार्बेज वैल्यू लाइक सी, तो व्हाट कैन आई प्रिंट नाउ. ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नो गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू है ही नहीं, और डिफॉल्ट वैल्यू भी इसको होता नहीं क्योंकि ये मेथड के अंदर है. अगर कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर होगा तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं. तो लोकल वेरिएबल को कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, याद रखो. अगर कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखोगे तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करो, नहीं तो यू विल गेट द एरर हियर. रिमेंबर दिस, अदरवाइज यू विल गेट द एरर हियर, अदरवाइज यू विल गेट द एरर हियर. एवरीबody understood this? Please reply. Shruti, what you were asking? Can you please show the array operation class once? Okay, ठीक है. तो ये है array operation class. ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन है क्रिएट का जो कि इंसर्ट करेगा डेटा को और ये डिस्प्ले करेगा डेटा को. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन टेक द SS in your language. Okay, or I will share this, don't worry. I will send the code as well as I will send these photos. ठीक है, so what I'm telling you कि ये कंसेप्ट क्लियर है ना सबको. ये हो गया इंसर्ट का कोड, ये हो गया डिस्प्ले का कोड. अगर किसी को पॉसिबल है तो यू कैन ट्राई फॉर सर्च का कोड, पब्लिक वॉइड सर्च डेटा. इफ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन ट्राई दिस टुडे. यहाँ पे तुम्हारा एरे पास कर दो और n पास कर दो. सिमिलरली इफ पॉसिबल सॉर्ट डेटा, जिनको पॉसिबल है उनको बोल रहा हूं मैं. ठीक है, ओके, जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है उन्होंने क्या करो, सॉर्टिंग के अंदर ऑप्शन ऐड करो. 1 फॉर बबल सॉर्ट, ओके, 2 फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ओके, 3 फॉर इंसर्शन सॉर्ट. जिनको डेटा स्ट्रक्चर आता है उनको बोला मैंने. प्लीज रिमेंबर, नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज नॉट फॉर ऑल. ओके, रिमेंबर, जिनको मालूम है बबल सॉर्ट क्या है उन्होंने ट्राई करो. सॉर्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शन. जिनको सर्चिंग आता है उन्होंने लिखो 1 फॉर लीनियर सर्च, 2 फॉर बाइनरी सर्च. इफ पॉसिबल ट्राई टू क्रिएट दिस. बट अदरवाइज जिनको कुछ भी मालूम नहीं है तो एटलीस्ट इतना क्रिएट करो कि सबसे पहले एरे क्रिएट करो और उसको डिस्प्ले करो. एक ही क्लास में करो. सबसे पहले क्या करना है देखो, आई विल टेल यू द सीक्वेंस. Those who are learning array first time in Java,
create a array of size 10 and insert the values in array and display the values. Second, display all the values in reverse direction. ये किसके लिए? जो लोग फर्स्ट टाइम जावा में array सीख रहे हैं. Then accept any n numbers in array and count how many numbers are even and odd. Fourth वाला program, accept any n numbers in array and find out the minimum number and max number from the array. ठीक है. Then sixth program, accept any n numbers in array and calculate the sum of all the numbers. Calculate the average of all the numbers and display the numbers which are greater than average. मतलब salary suppose ये क्या होगा? Accept any n salaries in array, calculate average of all the salaries and display the salary which are greater than the average salaries. तो ये प्रोग्राम तुम्हें ट्राई करने हैं array के अंदर. Tell me, कर सकते हो क्या? नहीं बताओ. Everybody please reply. Can you able to complete this 1 2 3 4 5 4 and 5 programs are there. 4 and 5 programs. ठीक है. तो create a 5 separate program, no problem. Create a 5 separate program, no problem. ठीक है. Okay. ठीक है. So today please complete this assignment. Complete this assignment today and tomorrow we'll continue. Please complete this assignment in array. Okay. So complete this 5 programs in array. 5 separate programs and then try this program. And then try this program with 2 classes. तो ये मैं कल continue करूँगा. ठीक है. If any questions, any doubt, any difficulty, okay, message me. And those who all are new students, so we'll take the separate lecture. Don't be confused. चलो then, I'll stop here now and we'll continue tomorrow.